Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Hello everyone, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, Namaskar. This is Anshu Jain and you are watching the third episode of the Qatar Day Presents, the Candid Talk, the music of life. Well, the music chooses its voice divine, and today we have someone chosen by music, and she will be sharing her journey through the music of life with us today. So let's hear it from her. तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। That was so lovely, friends. So, what we witnessed just now is this scintillating voice behind songs like Nazm Nazm, Tutacho Kabhi Tara, Namo Namo Yade, and many more. Yes, I'm talking about the versatile, multi talented, melodious, the very gorgeous Sumedha Karmae. Sumedha, welcome to our show. And literally, we are so proud, we are so glad, we are really honored that you've agreed to share your value time and experience with all of us. Thank you so much. I'm excited. So am I. पहली बार किसी इंटरव्यू के लिए ना मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया because it's you. So you know बचपन से जानते हैं जिसको, उसके साथ इंटरव्यू करने में ऐसा लगता है बस जैसे फ्रेंड्स बात कर रहे हो. So Exactly, because सेम सिटी को हम बिलोंग करते हैं, तकरीबन हम 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, if I'm not wrong. And I'm so proud, and I really feel so proud कि yes, मैं उसी सिटी को बिलोंग करती हूँ जहाँ से सुमेधा कर्मही आती है. Okay, Sumedha ji, मुझे सबसे पहले ये बताइए. I know about your journey. I mean, I've known about so many factors, but one thing that has always surprised me is, uncle, your dad was into sports, mom into education. And it really surprises me that all three of you, your eldest sister, she is an accomplished dancer, very renowned. Then the second one, she's the art director in Bollywood. Again, extremely profound, prolific in whatever she does. And about you, who doesn't know you in the entire India, and you have started gaining that name, not just India, but across the globe. So how come this connection with art? I think it's the freedom that mom and dad gave us, मैं और मेरी दोनों sisters को, क्योंकि you know आर्ट की तरफ इंक्लिनेशन दोनों सिस्टर्स का पहले से था. और जब से मुझे याद है मैं आसपास सिर्फ कभी डांस, कभी पेंटिंग, कभी गाना, क्लासिकल, ये सब सुनते हुए बड़ी हुई हूँ. तो yes, and I also wanted to play badminton like professionally अच्छे से, लेकिन पापा मुझे कभी स्टेडियम लेके नहीं गए क्योंकि वो इतने सारे बच्चों को कोच करते थे, but not me. तो मुझे कभी कभी बुरा भी लगता था, but फिर मैंने एक दिन गुस्से में बोला कि ठीक है, मुझे कोई स्पोर्ट्स में नहीं जाना है. But then ये कई लोगों को पता ही है कि 2.5-3 साल की जब से हुई थी तब से डैड को समझ में आया कि हाँ ये सुर में गा सकती है. तो मतलब थोड़ा सी है तो चलो उसमें कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करवाते हैं. सो बस ऐसे ही पार्टिसिपेट करते गई और गाने याद होते गए. और my mom actually wanted my elder sister who's an art director, उनको सिंगर बनाना चाहती थी. she also sings nice, बहुत अच्छा गाती है, क्लासिकल भी सीखी हुई है मुझसे ज्यादा, but प्रोफेशनल सिंगर मैं बन गई. Yeah, exactly. Because अगर मैं आप तीनों की जर्नी देखूं, I would just want to address to all our audiences जिनको नहीं पता होगा आपकी बड़ी बहन के बारे में, स्निग्धा दी के बारे में. So स्निग्धा कर्महे जिन्होंने मूवीज लाइक अंधाधुन वहां पे आर्ट डायरेक्शन किया हुआ है. एल्डर सिस्टर छत्तीसगढ़ से लेकर अंजाम में कथक के लिए काफी फेमस है. एंड यू आर अ रेनाउंड बॉलीवुड सिंगर. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि नॉर्मली हमने ये सुना है सुमेधा दी दैट छोटे शहर से आकर बड़े शहर में अपना नाम कमाना, इट इज नेवर इजी. एंड I can correlate with it so very well because we belong to the same place, right? So I know the area that we come from, a small city of a state called Chhattisgarh. हम राजनांदगांव को belong करते हैं. So how was this journey of yours? कैसा लगा आपको? Means राजनांदगांव से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मुंबई.
या How? पहले तो मैंने अपनी सारी लाइफ मतलब 16-17 साल अपने लाइफ के मैंने राजनांदगांव में गुजारे हैं। मेरी स्कूलिंग वहाँ की है। और राजनांदगांव जैसा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, और बहुत ही ऐसा है कि आप घर से निकल रहे हैं, अपने स्कूल तक भी जा रहे हैं ना, तो बीच में रास्ते में बहुत सारे जान पहचान के लोग मिल जाते हैं, सबको हाय हेलो करते करते। तो इतनी छोटी सी जगह है और सब एक दूसरे को जानते हैं, वैसा शहर है वो। और वहां से निकल के चंडीगढ़, जो कि मैं ऑलमोस्ट 1 साल ही रही थी, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर ऑडिशन देने के लिए मैं मुंबई आ गई। लेकिन मुंबई आने के बाद वर्क कल्चर बहुत ही अलग है, क्योंकि स्कूल के बाद डायरेक्टली यहाँ आना, तो एनीवे मुझे कुछ नहीं पता था इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे काम करती है, लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। थोड़ा कल्चरल शॉक भी था। और बट लकीली मैं सारेगामा कंपटीशन से यहाँ पर आई थी, तो गाइडेंस मिला थोड़ा सा। जब मैं कंपटीशन में उस टाइम पे वहाँ पे थी, तो म्यूजिकली बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी कभी। तो सीखना तो बहुत दूर की बात, तो वो सारी म्यूजिकल एस्पेक्ट तो बहुत सारा मुझे नया नया सीखने को मिला था। वर्क कल्चर समझने में बहुत टाइम लगा, ऑलमोस्ट आई डोंट नो, मतलब मैं अभी भी समझ ही रही हूँ शायद। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक कल्चरल शॉक तो लगता ही है, छोटे शहर से आके बड़े शहर में, एंड दैट टू सिटी लाइक मुंबई, Bye. और वो भी उसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो लेकिन पीपल आर काइंड, आई थिंक। लोग काफी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में आधी से ज्यादा लोग आई थिंक बाहर से ही आके यहाँ पे काम करते हैं। तो डेफिनेटली दे नो कि लोगों को किस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, कैसे स्ट्रगल्स होते हैं, कैसी जर्नी होती है। तो या आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड काइंड पीपल, बट मिल जाते हैं। Right, that's true. That is there everywhere, and it is basically how do you look at the world. जो आपका यस, एंड perception है, आई exactly. लव मुंबई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना लोग कि यहाँ पे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है लोगों को, तो वैसा है। इंटरफेयर नहीं करते हैं दूसरों की लाइफ में, लेकिन जब आपको हेल्प चाहिए होती है, दे आर देयर फॉर यू। Yeah, दैट्स व्हाई आई लव। that's why I love मुंबई है। सपनों का शहर है मुंबई, हजार लोग, करोड़ लोग आते हैं अपने सपने लेकर। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, हम जानते हैं कि ना जाने कितने लोग मुंबई जैसे शहर में आते हैं अपने अनगिनत ड्रीम्स, डिजायर्स, एम्बिशंस लेकर। एंड व्हेन हम रियलिटी शोज की बात करते हैं, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन, right? Like today, tomorrow, every second month you will see a new show coming up on the television, the auditions happening around. और ऐसे में कई लोग गुम भी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स गुम हो चुके हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट परफॉर्मर्स गुम हो चुके हैं। इन सब माहौल या में अपना नाम कायम रखना या बनाए रखना, हाउ that was possible for you? How did you make it happen basically? सी टू थिंग्स, एक तो ये कि जब आप मुंबई आते हो ना, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ के बारे में ही बोलूंगी, कि मैं आई थी यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन में और सिंगर बनने के लिए। बट व्हेन यू आर हियर, यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लाइक इफ यू आर good looking, if you're presentable, you have a lot of options like acting, anchoring, lot of options. तो उसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और जरूरी नहीं कि सारे लोग सारी चीजें कर पाए। क्योंकि मैं भी एक बार मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, जब इतने एक्टिंग ऑफर्स आ रहे हैं, तो मे बी शायद ये कोई यूनिवर्स का साइन हो, शायद मुझे कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में मैं रिग्रेट करूं। सो आई ट्राइड, बट मुझसे नहीं हो पाया। मुझे लगा कि सिर्फ एक चीज पे फोकस करना ना बेटर होगा। तो आई थॉट कि इस जन्म में मैं सिर्फ थोड़ा सा गा लूं, दैट बी इनफ। तो एक तो ये चीज कि फोकस रहना बहुत जरूरी है, बहुत लोग भटक जाते हैं। एंड द अदर थिंग अबाउट द रियलिटी शोज, बहुत बड़ा एक पुश तो मिल जाता है व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रियलिटी शो, लेकिन उसके बाद किस तरह से आप अपने आप को उस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं, वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। प्लस सिंगर्स जो हैं वो हमेशा विजिबल नहीं होते हैं।
लाइक एक्टर्स हर जगह विजिबल होते हैं, उनकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है, बट सिंगर्स की जब एक रियलिटी शो होता है तब, या फिर अवार्ड फंक्शंस में जब परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे सिंगर्स भी विजिबल होते हैं। Exposure. अभी की बात अलग है, या अभी सोशल मीडिया पे हर जगह लोग दिखते रहते हैं, बट अभी भी लोगों का यही है कि टीवी पे जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, दे आर वर्किंग। ऐसा नहीं है, एवरीबॉडी इज वर्किंग, सारे सिंगर्स कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, दे परफॉर्मिंग, शोज कर रहे हैं, किसी की अलग एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो लोगों को लगता है कि if those singers are not visible, वो लोग गायब हो गए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग एक्चुअली वापस चले भी जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। That's great. मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, हर किसी का वो, everybody has got their share of work or whatever is built for them or created for them, right? It's all about हमें उसे चुनना होता है और उस फोकस रहकर उसे करेक्ट तरीके से यूटिलाइज करना होता है। आपने एक्टिंग के बारे में अभी अभी बताया, कोई ऐसा मोमेंट है, आई मीन कोई ऐसा इंसिडेंट देन यू रियलाइज कि नहीं बॉस ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा? अरे एक तो जैसे मैंने बोला, एक फिल्म के लिए ऑफर आया था, तो मुझे लगा कि ठीक है, टीवी सीरियल्स को नहीं किया, रिजेक्ट किया, तो फिल्म का ऑफर है तो लेट मी ट्राई वंस। वर्कशॉप अटेंड किया 7 days एंड आई वाज लाइक अब नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं था कि मैं दिन भर गाना गाती रहती हूँ या हर वक्त रियाज करती रहती हूँ और वो 7 days में मुझे रियाज करने नहीं मिला, ऐसा भी नहीं था। बट जब आप रियाज नहीं भी कर रहे हो तो आप उसी जोन में हो, यू आर थिंकिंग अबाउट म्यूजिक, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, और यू आर जस्ट क्वाइट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर ब्लैंक। इवन देन आप उसी जोन में रहते हो, तो वो मेरे लिए दोनों चीजें ना मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था। सो आई थिंक तब मैंने सोचा कि नहीं, एक्टिंग नहीं हो पाएगी, लेट्स जस्ट स्टिक टू सिंगिंग, वो बेटर है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इस जन्म में गा लूं वो इनफ है। और दूसरी बार एक मुझे थिएटर का बहुत शौक है, मतलब देखने का। तो उसमें मेरा एक छोटा सा एक ड्रीम भी था कि पृथ्वी थिएटर है यहाँ पे मुंबई में, तो मुझे ना वहाँ पे परफॉर्म करना था। तो लेकिन मैं एक्टिंग नहीं करनी है, तो मैं परफॉर्म कैसे करूँगी? सो लकीली आई गॉट अ चांस टू सिंग इन अ म्यूजिकल। तो जैसे ही चांस आया मुझे, वो मैंने बोला यस यस यस, आई विल डू इट। और सारे प्ले का नाम था आज रंग है, और अमीर खुसरो की लाइफ पे, उनकी कॉम्पोजिशंस पे, उनके म्यूजिक पे, उनके पोइट्री पे बेस्ड ये प्ले था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा चांस है, कुछ अलग जॉनर भी ट्राई करने मिलेगा मुझे गाने के लिए। और उसमें लेकिन मैं गा तो रही थी, लेकिन सिर्फ एक 10 minutes का एक छोटा सा पार्ट था। उसको नौटंकी वो लोग बुला रहे थे, और उसमें जो भी सिंगर है, जो फीमेल लीड सिंगर जो है, उसको स्टेज पे आना होता है, थोड़ी एक्टिंग करनी होती है। तो मैंने बोला था मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगी, बाकी मैं पीछे रह के सब गाऊंगी। बोले कि नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू कम। तो फिर किसी तरह से आई कुड मैनेज, जस्ट जाके थोड़ी देर से खड़े होके बस गाना होता था, मैं गाती थी, एंड देन द अदर एक्टर्स वो अपनी लाइंस बोलते थे। गूफ अप भी किया मैंने 1-2 बार, एक्टर्स की लाइन खा गई थी, बट ठीक है, आई मैनेज टू परफॉर्म ट्वाइस। That's wonderful. And मुझे जब भी आप ये सब बोल रहे थे, जब आपने बताया कि आपने डिसाइड किया कि मैं बहुत कुछ करूं, उससे अच्छा है कि मैं सिर्फ एक लाइन पे फोकस करूं एटलीस्ट इस जन्म में। सो एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि rather than being mediocre in multiple areas or multiple dimensions, it is always better to be a champion in one particular field. So that is what you are doing. So it is exactly the same. चैंपियन तो नहीं, बट जितना हो सकता है उतना। That's what you believe. क्योंकि जब कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे हर वक्त लगता है कि there is a scope of improvement, but we know what you are and what we are, and actually that should be the way. सुमिता जी, एक बात बताएं मुझे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ because probably you will be able to understand the mentality, but I'm emphasizing on a particular point a bit more for the benefit of our audience. The place we belong to, it's a very small city, right? वहाँ से बॉलीवुड तक का सफर
especially when people look at it at a very different manner, in a very different way. You know, it is perceived extremely, I can say, there are times when people do have that conservative mindset as well. What was that biggest support factor towards your end, at your end, which encouraged you to reach there or fulfill your dreams, ambitions? Definitely these two very 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 important people in my life, my mom and dad. क्योंकि तो सबसे पहले मैंने जो बात बोली ना, फ्रीडम, जो फ्रीडम मेरे मॉम डैड से हमें मिली है, मुझे और मेरी सिस्टर्स दोनों को, यू नो, छोटी जगह में रहने के बाद भी जो मॉम डैड का जो माइंडसेट है, जैसा वो सोचते हैं, क्वाइट लिबरल. मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं होती उनकी जगह तो मैं इतनी लिबरल होती, क्योंकि I'll tell you an example. जब मेरी सबसे बड़ी वाली जो सिस्टर है, वो कॉलेज के लिए शी वेंट टू रायपुर एंड प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से अपने गुरुजी के पास सीखने के लिए गई थी वो. तो मॉम डैड ने तो खुशी खुशी भेज दिया, वो भी डांस के लिए, कथक सीखने के लिए. लेकिन बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो यू नो फ्रेंड्स और कलीग्स और जो भी हैं नेबर्स, सबने इस तरह से बोला कि अरे अपनी लड़की को भेज दिया, ऐसे कैसे भेज दिया, और यू नो जैसे बात करते हैं लोग. बट ये सारी बातें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, लेकिन मेरे मॉम डैड को कभी नहीं, क्योंकि हमेशा से जब भी मुझे अगर म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी चीज कहीं जाना है, इवन वहां पर मैं नहीं सीख पा रही थी तो खैरागढ़, आई यूज्ड टू गो टू खैरागढ़ एवरी संडे, तो वो पापा मुझे लेकर जाते थे. मतलब किसी भी तरह का सपोर्ट आप बोल रहे हो, वो भर भर के मेरे घर से मिला है मुझे. मेरे लाइफ के डिसीजंस वो लेते हैं क्योंकि उनको बेटर पता है, मैं हमेशा गलत लेती हूँ. तो वन मोर थिंग, जब मैं चंडीगढ़ से यहाँ आई थी ऑडिशन देने के लिए सारेगामापा, तो तब मैं कंफ्यूज थी कि मैं अगर फाइनल ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुई तो मेरा पूरा 1 साल वेस्ट होगा कॉलेज का. लेकिन मॉम ने बोला कि अरे जाओ ऑडिशन दो, हमेशा थोड़ी ऐसा चांस आता है, एग्जाम फिर से दे देना. लाइक सो कूल. मैं गई और सिलेक्शन हुआ, एंड देन कंपटीशन के बाद मम्मा ने यू नो एवरी मॉम इज लाइक इतने छोटे शहर से बॉम्बे में कैसे रहेगी पता नहीं, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और मेरे साथ यहाँ मुंबई शिफ्ट हुई. तो ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो इतना भर भर के सपोर्ट करते हैं, और वो भी यू नो यू विल ऑलवेज फ्री कि आपको जो करना है करो, जस्ट यू हैव टू बी प्रोडक्टिव एवरी डे एवरी मोमेंट, और जो आपको सपने देखना है देखो, एंड जस्ट follow your heart. So you were never forced, you were never bounded to do a particular thing. So अगर मैं जितना समझ पा रही हूँ, it is like जितना सपोर्ट बचपन से हमें हमारे घर में मिलता है, it is extremely important कि एक बच्चे को अलाउ किया जाए कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए. Whatever is his or her passion, which most of the parents they fail to do it. Correct. ड्रीम देखने के लिए भी घर से सपोर्ट की जरूरत होती है, स्टार्ट तो वहां से होता है. ट्रू ट्रू. हम कहते हैं ना फॉलो योर पैशन, बट सबसे पहला फैक्टर होता है फॉस्टर योर पैशन. आपको रियलाइज करना जरूरी है, पता करना जरूरी है कि आपका पैशन है क्या, तब तो आप उसे फॉलो कर पाओगे. और वो बचपन में ही जड़ खत्म हो जाएगी अगर घर जो पहला हमारा स्कूल कहिए या हमारा पहला सब कुछ जहाँ से शुरुआत होती है वहां पे सपोर्ट ना मिले. Right. Yeah. So Madadi, you were just mentioning, you were talking about your trainings at Khairagarh University. I would just want to know, I have heard in one of your interviews that wherein you had mentioned कि आपने कभी कोई professional classical training नहीं ली है music की. जितना भी आपने सीखा है, you have learned. Yes, definitely आपके गुरु थे राजनांदगांव में, मास्टर जी सचिन, जिनके पास से आपने थोड़ी बहुत सिंगिंग की ट्रेनिंग ली, फिर आपने सारेगामापा के दौरान ली, एंड देन रेस्ट मुंबई में आकर. तो आप मुझे एक बात बताएं कि एक फील लाइक सिंगिंग जो कि इतना डाइवर्स, इंटेंस, डीप, और इट इज नॉट एट ऑल इजी इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बिलोंग करते हैं. इसमें क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग या प्रोफेशनल ट्रेनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यू आर एन एक्सेप्शन. हमने जितने भी सिंगर्स को बढ़ते हुए देखे हैं. सो व्हाट इज द कोरिलेशन एंड व्हाट इज द वे, आई वुड वांट टू नो. सो यू नो बेसिकली फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी कभी नहीं हुई क्लासिकल में, लेकिन मैंने बहुत सारे गुरुओं से सीखा है. जैसे
आचार्य जी है उनसे सीखा, हाजरा मैम से सीखा, देयर इज अ लिस्ट। ओके, खैरागढ़ में भाले मैम, बीना मैम, कितने लोगों से मैंने म्यूजिक सीखा है। बट यू नो एक फॉर्मल ट्रेनिंग जो होती है अच्छे से प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से सीखना और वो सब, वो कभी नहीं हुआ। बट थोड़ा पार्ट्स पार्ट्स में जहाँ से भी जो मिला वो मैं सीखती गई। और समीर सर कहा करते थे कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुनना। तो यू नो आप जो सुनोगे वही आप यू नो आप अपने टैलेंट को उस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। सो आई थिंक वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेसन है मेरे लिए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं थोड़ा यू नो डीक्लटर करते रहूं और हमेशा अच्छा सुनने की कोशिश करूं। तो वो एक मेरी हमेशा कोशिश रहती है, और जहाँ से भी जो सीखने को मिले वो मैं सीखती रहती हूँ। इवन यहाँ पे मैं जेनिफर डिसूजा है उनके पास जाती थी वोकल वॉइस कल्चर के लिए। सो बहुत सारी वोकल एक्सरसाइजेज उनसे सीखी है विच हेल्प मी इन यू नो इम्प्रूविंग माई प्रोजेक्शन, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग लाइव, आप जैसे भी गाने गाते हो, स्टूडियो में जैसा भी गाते हो, लेकिन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग लाइव यू हैव टू बी लाइक यू नो फुल प्रोजेक्ट करके गाना पड़ता है। तो वो सारी चीजें भी हर जगह से अलग अलग सीखने को मिलती है। और लेकिन आई आई मस्ट से कि क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंडियन क्लासिकल हो या वेस्टर्न क्लासिकल हो। यू नीड टू हैव अ गुरु। गुरु होना बहुत 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 जरूरी है। Yeah, so having the right mentor is a necessity in every field, irrespective of which area you belong to, which industry you belong to. Yes. Absolutely. सुमिता दी, एक बात बताएं, आपका जो ड्रीम है इज कम्प्लीटली इनटू सिंगिंग, हम सब जानते हैं बिकॉज आप उस इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रही हैं, बट व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम ऑफ लाइफ? um, वो भी सिंगिंग से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। मतलब मैं चाहती हूँ कि बस यू नो मैं गाती रहूं लाइफ भर, वैसे ही मर जाऊं। यू नो लाइफ जब तक है मेरी, मैं बस गाते रहूं। और यू नो जो ये गिफ्ट मिला है मुझे, मेरी वॉइस मिली है, उससे अगर लोग एंटरटेन हो रहे हैं या यू नो किसी से मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप ये गाना सुन के मुझे ना बहुत सुकून महसूस होता है और ये वो, तो आई थिंक बस वही करना है, वही मेरा अल्टीमेट ड्रीम है। पहले बहुत सारे ड्रीम्स थे, ये करना है, वो करना है, वैसा करना है, बट अब लगता है कि वो सब होता रहेगा, बट अल्टीमेट ड्रीम यही है बस। सिंगिंग, दैट इज द मेन पार्ट। अच्छा, तो जब हम अल्टीमेट ड्रीम की बात करते हैं, व्हिच म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर इट्स a dream to work यार with? रहमान, before you complete the question. या करेक्ट, तो इनका कौन सा गाना है जो आप कभी अगर रिक्रिएट करना चाहो तो आप करना चाहोगी? Oh God. नहीं, मैं कभी भी रिक्रिएट नहीं कर पाऊंगी आई थिंक, लेकिन बहुत सारे गाने हैं, जैसे two of my most favorite songs of A.R. Rahman is चुपके से Okay, and तू बिन बताए from रंग दे बसंती. can we have like दो लाइन of दोनों गाना? Yeah. जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ना ले आधी आधी, रात भी ना हिले आधी आधी, ये चुपके से लग जा गले, रात की चादर तले, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले. So this is my most favorite song. So And I also love तू बिन बताए, बहुत ही that is सूदिंग one of सा my गाना favorites. है. Yeah, Yeah. yeah, one Wow. of my favorite, most favorites. Yeah. तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वहीं, बस.
I was getting completely engrossed, and that's when I realized कि boss, there's a show. It's my live talk show going on. That was so nice. मिलके तो I think for और आराम से वो एक स्पेशल वाला बॉन्ड है, मेरा स्पेशल वाला हक है जो मैं आपको बोल सकती हूँ. जो सुमित्रा दी, हमने you have got a lot of fans. काफी सारे messages मैंने आपके देखे हैं, especially जब इस interview के लिए मैं तैयार कर रही थी, you know, of your fan encounters, the kind of messages they send to you, write to you on Instagram, Facebook. ऐसा आपका कोई fan moment जो आपको याद हो, बहुत ही खास, बहुत ही special, कई होंगे, but something that really touched you, or it was so funny or whatever. 2-3 है, मतलब एक तो बहुत ही जेनेरिक है, वो ये कि मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब मेरे जो भी गाए हुए गाने हैं वो लोग कवर करके जब टैग करते हैं, और यू नो आई लिसन टू देम, और जब रीपोस्ट करती हूँ तो दे आई मीन उनको बहुत खुशी होती है, और वो बहुत अच्छे से यू नो एक्सप्रेस करते हैं कि वो गाना उनकी लाइफ में यू नो they listen to those songs every day, especially like Namo Namo. वो मुझे कितने लोगों ने बोला है कि हम सोने से पहले वो सुनते हैं तो बहुत ही अच्छी नींद आती है, या फिर सुबह उठते ही मैं मेरा पहला गाना जो मैं सुनती हूँ वो ये है, नमो नमो. इवन माय फ्रेंड्स, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू नो आई बीन ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे गाने मिलते हैं और मैं अच्छे से गा पाती हूँ और लोगों तक पहुँच पाते हैं. तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे यू नो motivate करते हैं every day to you know keep singing and keep doing good and better. और so Instagram पे there are a few fan clubs of mine जो pages हैं, तो बहुत ही ज़्यादा flattering है actually, लेकिन मुझे you know वो 5 ग्रुप्स जो हैं उनका एक अलग Instagram पे ग्रुप बना हुआ है, तो यू नो जब भी उनसे बात करनी होती है, इनफैक्ट जब मैं कभी कभी लो फील करती हूँ तो मैं उन लोगों से बात कर लेती हूँ, तो आई फील बेटर. सो दे आर लाइक माय यू नो एक्सटेंडेड फैमिली वर्चुअल लाइफ में. तो बहुत ही अपनापन सा फील होता है ऐसे फैंस और ऐसे लिसनर्स से. तो या ऐसे ही कुछ हैं फैंस मेरी लाइफ में. आई रियली फील लकी. That is what keeps us going, right? Fan moments, and that is what inspires us to even perform better. So rapid fire round के बारे में मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्दी, जो कि स्पेशल सेगमेंट है. It is a surprise element for you, जिसके बारे में मैंने अभी तक आपसे कुछ भी जिक्र नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है. लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. हमने लाइफ में सुना है कि जब हम जितने सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेस का लैडर जो है वो क्लाइम करते हैं, उतने ही हमारे दोस्त या हमारे पहचानने वाले पीछे छूटते जाते हैं. ये कितना ट्रू है that the more successful you become, the more you get detached to people around you? How true is that? Oh, not really. मतलब मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं जो जिनसे मैं अभी भी टच में हूँ. हमारा एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे कभी कभी लूडो रिक्वेस्ट भी भेजते हैं हम. तो इतना ज्यादा यू नो अभी तक के वैसे ही बात करते हैं हम. और मैंने 1-2 फ्रेंड से मेरे सुना भी है कि यू नो मैं ऐसे जैसी भी मेरी इमेज हो मतलब लोगों के सामने, लेकिन दे आर लाइक तू अभी भी वैसी है, तू अभी तक बहुत झल्ली है. तो आई थिंक मैं अभी तक वैसी हूँ और सेम वैसी ही बात करती हूँ और वैसा ही सोचती हूँ, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई फर्क पड़ता है. बट या लोग शायद कभी कभी आपसे थोड़ा अलग बिहेव करने लगते हैं या और ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है. बट जो हमेशा से फ्रेंड्स रहे हैं वो अभी भी फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे. तो या मुझे तो कोई डिफरेंस फील नहीं होता. So it is all about the way we maintain our relationships, irrespective of anything and everything. Right. And exactly. फ्रेंड्स मेरे साथ वैसे ही है, मेरे घर पे भी सब मेरे साथ वैसे ही है. मुझे अभी भी रोज डांट पड़ती है, रोज कॉल करके बोलती है रियाज किया या नहीं. रोज मेरी बहन कुछ ना कुछ बोल के मुझे डांटती रहती है. तो मुझे तो कुछ भी चेंज नहीं लगता लाइफ में. और ये तो जब मुझे आपसे मिलने के बाद लगा था, आई वुड वांट टू लेट ऑल आवर ऑडियंस नो, इन केस अगर आपने वो कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया था, तो लास्ट ईयर सुमेधा कर्मही वाज इन दोहा 6th of June को 2019. शी वाज इन दोहा along with अरमान मलिक. बहुत ही जबरदस्त कॉन्सर्ट हुआ था, एंड तभी कतर में आपके काफी फैंस बने थे, काफी सारे लोग.
and we are really hoping कि हम बहुत जल्द आपको कतर में फिर से देखेंगे once things are better. And Oh, yes. yes, yes, you have to be here, definitely. And you're still the same. I would say the same. मैं See, आपसे I मिली told तकरीबन या मैं शायद 8-10 साल बाद मिली हूँ आपसे. I'm here in Doha for almost 8 years now, and 12th के बाद हम शायद अभी मिले. And there was yeah. no change at all. The first thing that came to my mind was, यार ये तो exactly पहले की तरह है. आज भी कोई change नहीं है. Right. You know, Wonderful. Sumita Di, it has been such a pleasure speaking with you so far. And आगे बहुत सारा और भी exciting journey होगी मुझे पता है शो की. लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास आपके लिए एक special वाला round है, that is rapid fire round, जिसमें मैं आपसे पूछने वाली हूँ, कुछ interesting questions पूछने वाली हूँ, जिसका आंसर आपको जल्दी जल्दी देना होगा, या तो एक word में, एक sentence में, based on the questions. Okay? okay. So, are you ready for it? Shall we begin? Not ready, but yeah, chalo, too good. Okay. Number 1. What makes you more happy? Compliments on your looks or your singing? Singing, voice, anytime, anytime. Okay. Number 2. Yeah. KK or Arijit Singh? ये तो फंसा दिया, इसलिए मुझे रैपिड फायर पसंद नहीं है. बोथ. इसमें नहीं, हाँ, इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकती. बोथ. Okay. Yeah. Nasmina's Namo Namo. Nazma. Nasm. Okay. Superman or your favorite dress? Favorite what? Superman or your favorite dress? I know about your Favorite dress. obsession with Superman. लेकिन मुझे Yeah. reason जानना है, मुझे ना इसकी story जानना है. What is the reason that you are so very obsessed with Superman? Oh God, नहीं, एक्चुअली मैं इतनी ज्यादा ऑब्सेस नहीं हूँ जितना मुझे लोगों ने बना दिया है, क्योंकि मुझे सुपरमैन पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा सुपरमैन मर्चेंडाइज और लॉट ऑफ स्टफ. मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, सुपरमैन बैग, टी शर्ट, शॉर्ट्स, लेजर लाइट्स, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, सब कुछ है मेरे पास सुपरमैन रिलेटेड. बट या मुझे ये सब कलेक्ट करने का शौक है. बहुत इतनी बड़ी फैन भी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बड़ी फैन भी नहीं हूँ. सो या आई वुड गो विद माय फेवरेट ड्रेस. का हर चौथा कॉस्ट्यूम सुपरमैन से एसोसिएटेड होता है ऑलमोस्ट. या. Okay. One Bollywood actor you would want to sing for, actor or actress, जिसके लिए आप गाना गाना चाहेंगी? I think Alia Bhatt and Alia Bhatt. If you ever get a chance to act in a Bollywood film, which, for suppose, I mean, just you would want to accept, who would that be with? Shah Rukh Khan or Salman Khan? Shah Rukh Khan. Okay, all right. और ये कभी my dreams. इंशाल्लाह पूरा होगा. जिस दिन पूरा होगा, प्लीज मुझे प्रीमियर में जरूर बुलाना. मिठाई फैन ऑफ शाहरुख खान. मैं भी ऐसा के फैन हूँ वैसे. ओके. आपका बॉलीवुड का सबसे फेवरेट सॉन्ग? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. जो आपने नहीं गाया है. हाँ, बहुत सारे हैं. चल, कोई लेटेस्ट फेवरेट या ऐसा कोई गाना? बहुत लंबी. रैपिड फायर है. So I think मुझे ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है मैं शायद गलत एरा में पैदा हो गई हूँ. तो मुझे 60s 70s के गाने जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है. तो उस जमाने के गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. सो आई स्टिल हैव टू से वन फेवरेट सॉन्ग, राइट? लग जा गले. ओके, लग जा गले. या हमने आपको गाते हुए भी सुना है, बहुत ही बेहतरीन. You could sing 2 lines for us. लग जा गले
कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले. Thank you. With such a cute voice, Sumedha Idi. I mean, Thank seriously. you. A Thank last you. question. What, according to you, matters the most? Hard work or talent? Both. Both equally important. Okay. So, Yeah. inherent qualities होती है उनके साथ hard work. दोनों जरूरी है. Yes. Yeah. Wonderful. And even luck is also very important. Luck is equally important. That's true. That's very Yeah. true. But, and especially the industry I you think belong to. hard work, talent, and no, talent and hard work एक साथ होते हैं, फिर luck. Good luck. Okay, Yeah. great. ओके वेल बहुत मजा आया आपसे बात करके. करेंटली मैं आपको वर्चुअल में एक हैम्पर नहीं दे सकती, बट जब मिलूंगी तब जरूर आपको मैं हैम्पर देने वाली हूँ. अगर एक आपका जो भी बहुत ही फेवरेट सॉन्ग Maybe I'll wait for है, it. नमो नमो, इफ यू कुड सिंग फॉर ऑल ऑफ अस. डेफिनेटली एक ये ऐसा गाना है जो सभी के सभी बहुत दिल से सुनना चाहेंगे. Sure. जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा. Wow, it's so peaceful listening to this song, Sumedha Idi. I mean, it's my dream to perform on this song because I'm too a Kathak dancer, but practice पूरी तरह से छूट गई है. Wow, very good. Wow. Yes, so, and same from Hajra sir. वहीं से मैंने सीखा था, लेकिन practice I didn't continue after that. But then yes, I would नहीं, want. हम गुरु में हुए ना फिर तो. जी बिल्कुल, आप हाजरा मैम के पास सीखती थी, मैं हाजरा सर के पास सीखती थी. Yes. Exactly. Amazing. It's the same thing. But it was indeed a pleasure conversing with you. I really had so much of fun. अभी तक मेरे सारे interviews जो हुए हैं वो इतने professional हुए हैं. For the first time, I felt like it was completely a friendly session. It was not that formal. It has been so far, and I guess the audience also needed a break from such heavy topics and discussions. And I'm pretty sure they're going to be loving it. One message that you would be wanting to give to all your fans, not just in Qatar, India, and across the globe. Just stay musical, stay positive, stay safe, and बस कुछ नहीं, live and let live. और life actually बहुत simple है, तो ज़्यादा complicate ना करें, बस just be happy. Wonderful. बिल्कुल लाइफ बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड से हम करते हैं, हमारे रिएक्शंस करते हैं. It is absolutely true. So thank you so very much, Sumedha Idi. It was such a wonderful session. I've been calling you Di again and again because it is really very tough for me to not call you Di. Since you have been my senior in the school, and I've been calling you that way right from the time I know you. And thank you so much once again for giving us your precious time and experience, sharing your experience with us. Thanks a ton. Thank you. So I was in conversation with the scintillating and versatile Bollywood singer Sumedha Karmahi. Well, talent plays a very important role to be successful in life, but what is of utmost importance is the support from the family, hard work, determination, and staying focused. And along with that, what matters the most is to find one's passion, fostering your passion, because that is when you will be able to follow on.
So these were some of the learnings of this musically engaging session with Sumedha Karmahi. Friends, if you like our session, if you like the Candid Talk, don't forget to follow us on Instagram, Facebook, and Twitter. That is, follow Qatar Day on all the social media handles, all the social media platforms. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, that is Qatar Day. Along with that, for the latest news updates, you can visit our website, that is qatarday.com. So this is your host for the show, The Candid Talk, Anshu Jain, signing off for now with the promise that I'll be back again with another engaging session very soon. Until then, stay safe, take good care. Thank you.